Welcome back, India aspirants, to the 8th of 40 lectures for the English Crash Course for NDA by Mar Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember we are already done with 7 lectures. We started with parts of speech, moved into subject-verb agreement, then covered nouns, pronouns, adjectives we started with, and today is the last day for adjective. We're going to do some rules for the usage of adjectives. Let's dig right into it. Alright. So as and so as have positive degree between them. We've already done this before in the positive, comparative and superlative degree. जब हम कर रहे थे adjective का तो हमने देखा था positive degree के लिए as use होता है. तो वही हम यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि as या so as के बीच में positive degree use होगा, comparative या superlative degree use नहीं होगा. For example, he is as क्या हो सकता है? He is as tall as his brother, he is as strong as his brother, he is as intelligent as his brother. कुछ भी हो, पर पॉजिटिव डिग्री लगेगा. टॉलर नहीं लगेगा, स्ट्रॉन्गर नहीं लगेगा, मोर इंटेलिजेंट नहीं लगेगा. हर हैंडराइटिंग इज नॉट एज नीट एज माइन, इज नॉट एज गुड एज माइन, इज नॉट एज नीट एज माइन, इज नॉट एज फास्ट एज माइन, इज नॉट एज क्विक एज माइन. फॉर एग्जांपल, इज नॉट एज फास्ट एज माइन. All of these. So positive degree. Let's move on to rule 2. Dan is always preceded by a comparative degree. अब comparative degree के बाद Dan लगेगा. इसका मतलब Dan के पहले. Dan is always preceded by मतलब Dan के पहले क्या लगता है? Comparative degree. Comparative degree वही tall का taller, good का better, hard का harder, intelligent का more intelligent. We've already done this. If you don't remember, please revisit the 6th lecture of which is the first lecture of adjectives, and you'll be clear about the degrees of adjectives. Degrees of comparison of adjective. He is taller than his brother. अभी हमने देखा था he is as tall as his brother. Now he is taller than his brother. Comparative degree may or may not be followed by than. अब जरूरी नहीं है कि comparative degree के बाद हमेशा than लगे. ये जरूरी है कि than के पहले comparative degree ही लगेगी. than के पहले positive या superlative degree नहीं लगती. पर comparative degree के बाद हमेशा than लगे ये संभव, ये जरूरी नहीं है. For example, today I am feeling better. पूरा नहीं लिखा मैंने, पूरा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? Today I am feeling better than yesterday. तो देखो आप than आ गया. पर अगर than yesterday में ना भी लिखूं तो भी सेंटेंस कंप्लीट है. It still makes sense. Today I am feeling better. आज मुझे बेहतर महसूस हो रहा है. Rule 3, we use the before the superlative degree. अब superlative degree के पीछे क्या लगता है? The. So he is the best player of the team, or he is the tallest player of the team. Yes. So best is the superlative for good, good, better, best. Tallest is the superlative for tall, tall, taller, tallest. You will see tallest के पीछे the लगा है, इसका मतलब the before the superlative degree. Let's move on to rule 4. When comparing only two people, animal or objects. जब आप सिर्फ दो को कंपेयर कर रहे हैं, दो वस्तुओं, व्यक्तियों या पशुओं को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे तुलना कर रहे हैं, we use the comparative degree. तब हम comparative degree का उपयोग करते हैं अगर उन दोनों में समानता नहीं है. ये बात हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं adjectives के फर्स्ट में. When we were studying about positive, comparative and superlative degree, now we are digging deeper into it, but make sure that you remember everything that has happened in the previous lectures. Only then would you be able to move ahead, because these are like steps and every step is important to move on to the next step. आप नीचे से एकदम से छत पर नहीं पहुंच सकते. You have to climb one step at a time. Preceded by the article the and followed by the preposition of. Use the comparative degree preceded by the article the and followed by the preposition of. अब देखो दो लोगों को या जानवरों को या ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तो the और of के बीच में भी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो सकती है. फॉर एग्जांपल, she is the better of the two sisters, or she is the taller of the two sisters. तो दो लोगों में जब कंपैरिजन हो रहा है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही उपयोग करेंगे, taller और better. Make sense? So she is taller than her sister. ये भी कर सकते हैं हम. She is taller than her sister. वो भी एक तरीका है कंपेयर करने का, than लगा के. पर than अगर नहीं लगा के हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के बीच की बात बता रहे हैं कि she is the taller of the two sisters. कि उन दो में से वो ज्यादा लंबी है. When choosing out of more than two. अब अगर दो से ज्यादा में हम लोग बात कर रहे हैं तो we use the superlative degree in the same format. Same format वैसे the dash of. Same format मतलब the dash of. So he is the tallest of all the boys in the class. The taller of the two sisters, क्योंकि दो थे तो comparative है. Yeah, he is the best of all the boys in the class. All the boys मतलब दो से ज्यादा हैं. दो ही होते तो दो लिखा होता. All लिखा है तो इसका मतलब दो से ज्यादा है. दो से ज्यादा है तो comparative degree नहीं, superlative degree का उपयोग होगा, जो कि EST फॉर्म में होता है.
रेगुलर एडजेक्टिव्स के लिए या मोस्ट लगता है उसमें, फॉर एग्जांपल शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों बहनों में वो ज्यादा सुंदर है। ही इज द मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, वो सबसे ज्यादा हैंडसम है सभी बच्चों में, सभी बालकों में क्लास के। मोस्ट एंड मोर, अगेन सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। Rule 5, when comparing two qualities of the same noun or pronoun, we use the positive degree. अब जब हम comparing two qualities of the same noun or pronoun, we use the positive degree. जब हम एक ही noun या pronoun की, जैसे he, ये pronoun यहाँ पे है he, इसकी ही दो qualities को हम लोग एक दूसरे से compare कर रहे हैं। हम उसकी किसी एक quality को, किसी एक adjective को दो लोगों के बीच में compare नहीं कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के दो एडजेक्टिव्स को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, तब वहां पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती है, द वर्ड मोर लगता है। ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, नहीं, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, वो समझदार तो है पर उससे ज्यादा उसके पास निर्णय ले पाने की क्षमता है। इंटेलिजेंट और वाइज में क्या डिफरेंस होता है? इंटेलिजेंट मतलब कि बहुत तेज तर्रार दिमाग आपका तेज है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाए आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जल्दी से याद हो जाती हैं आपको चीजें, इत्यादि इत्यादि। वाइज का मतलब होता है कि आपको पता है कब क्या निर्णय लेना चाहिए, कब शांत बैठना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब आना चाहिए, कब हाँ कहना चाहिए, कब ना कहना चाहिए, इसको हम लोग विजडम कहते हैं। ज्ञान, नॉट जस्ट ज्ञान बट मोर देन दैट, विजडम। ज्ञान कह सकते हो आप, बट ज्ञान, लोग अक्सर ज्ञान नॉलेज को भी बोल देते हैं कि कोई जानकारी आपको दे रहा है तो आप कहते हो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, पर जरूरी नहीं है। ज्ञान इज नॉट जानकारी, जानकारी अलग चीज है। जानकारी में किसी से प्राप्त करके मैंने 10 बुक्स पढ़ ली, उन बुक्स की अलग अलग चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बड़े इंप्रेस हो रहे हैं, पर मेरा ज्ञान नहीं है, वो मेरे अंदर से नहीं आया, मैंने उत्पन्न नहीं किया है, वो बस जानकारी किसी की पढ़ ली है मैंने। और आजकल तो इतना ज्यादा ओवरलोड है इंफॉर्मेशन का कि आप कोई भी जगह खोलोगे, आप रील्स भी चलाना शुरू कर दोगे, यूट्यूब पर शॉर्ट्स आप देखना शुरू कर दोगे, आपको बहुत ज्ञान मिलता रहेगा, बहुत जानकारी आपको मिलती रहेगी। वो जानकारी फिर दोस्तों के बीच में आप बैठोगे, आपको बोलने लगेंगे भाई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है वो। बट विजडम इज समथिंग मोर, विजडम इज योर एबिलिटी टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, टू यूज दैट नॉलेज। सो यहाँ पे जब हम एक ही व्यक्ति के दो गुणों को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके अंदर एक गुण दूसरे गुण से ज्यादा है, तो दोनों गुणों को हम लोग पॉजिटिव डिग्री नहीं बताएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बताएंगे। Then we have, when comparing one member of a class with the other members, we must use any other to exclude the mentioned member. अगर हम किसी क्लास, किसी श्रेणी, कोई भी श्रेणी है, जैसे धातुओं की श्रेणी है, उसमें हम सोने को कह रहे हैं कि सोना सबसे महंगा धातु है, बाकी धातुओं में, सभी धातुओं में सबसे महंगा नहीं है, सभी धातुओं से ज्यादा महंगा नहीं है वो, सभी धातुओं से महंगा हुआ मतलब अपने आप से भी महंगा है। अपने आप से महंगा कैसे हो सकता है? तो सभी अन्य धातुओं से महंगा है। That is what they are saying, that you have to put any other. I'll tell you. Gold is more precious than any metal. This is incorrect. Gold is more precious than any metal का मतलब हो गया कि सोना किसी भी धातु से ज्यादा मूल्यवान है, किसी भी धातु से ज्यादा मूल्यवान नहीं है, वो अपने से ज्यादा मूल्यवान नहीं है, अपने तो बराबर मूल्यवान है। तो we have to put any other metal. This is the correct way of saying that. No, diamond is more precious than any metal. ये सही है, क्यों? क्योंकि डायमंड धातु नहीं होता है, डायमंड धातु नहीं होता है, डायमंड इज नॉट अ मेटल, डायमंड इज नॉट अ मेटल, दैट इज व्हाई वी कैन से एनी मेटल, कि डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। किसी भी धातु से ज्यादा, सोने से, प्लैटिनम से, किसी से भी ज्यादा मूल्यवान होता है हीरा। हीरा, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। Rule 7, we use to and not than in adjectives ending with IOR. अब जो भी adjectives IOR से खत्म हो रहे हैं, IOR से जो खत्म हो रहे हैं, वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो रहे हैं, पर उनके बाद than नहीं लगता, उनके बाद to लगता है। IOR से कौन से खत्म हो रहे हैं? सुपीरियर, इंफीरियर मतलब श्रेष्ठ और निचला, सीनियर जो सीनियर है आपसे, जूनियर जूनियर है, प्रायर पहले का जो किया हुआ है, एंटीरियर आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर पीछे का हिस्सा। So anterior chain, posterior chain of an animal. For example, he is senior than me. No, he is senior to me. We just saw IOR से अगर खत्म हो रहा है तो than नहीं, to लगता है. And all of these are comparative degrees, considered to be comparative degrees. Then interior, exterior, ulterior, major, minor, empty, excellent, circular, extreme, chief, entire, complete, perfect, final, last, unique, universal, round, square, triangular, eternal, everlasting, ideal, absolute, impossible, and supreme. Do not have a comparative and superlative degree. Qua their meaning. ये ऐसे शब्द हैं जिनका आप अर्थ अगर देखोगे तो अर्थ में आपको ये पता चलेगा कि वो ज्यादा या कम नहीं हो सकता,
वो एक ही डिग्री हो सकता है, तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं इंटीरियर अंदर का, तो ज्यादा अंदर का और ज्यादा अंदर का ऐसा नहीं होता, या तो अंदर है या बाहर है, अंदर का है या बाहर का है। ऐसे एक्सटीरियर बाहर का, अल्टीरियर मतलब अल्टीरियर मोटिव, आपके सबसे श्रेष्ठ जो आपका उद्देश्य है उसके लिए अल्टीरियर यूज किया जाता है। अल्टीरियर मतलब सबसे श्रेष्ठ। अब सबसे श्रेष्ठ है, अगर ऑलरेडी बोल दिया हमने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, तो उसको फिर और ज्यादा सबसे श्रेष्ठ या कम सबसे श्रेष्ठ इज इनकरेक्ट। ऐसे मेजर, माइनर, एम्प्टी, खाली है कोई चीज तो खाली है, ज्यादा खाली कम खाली नहीं होता। एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, ये सारे आप देखोगे। जिसका भी आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज मेक श्योर यू आर लुकिंग इनटू इट एंड कंटिन्यूइंग टू फिल इन योर लेक्सिकॉन। जो आप अपने लिए बना रहे हो, लेक्सिकॉन बनाने का जो तरीका है वो पहले लेक्चर में बताया गया है। मेक श्योर टू रिविजिट दैट फर्स्ट लेक्चर इफ यू डू नॉट ऑलरेडी नो हाउ टू मेक योर ओन लेक्सिकॉन। तो दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट? नहीं, मोर इंफीरियर कैसे हो सकता है? तो इंफीरियर है, खत्म बात। इट इज इंफीरियर टू दैट, उससे कम क्वालिटी का है ये। या भाई दो कपड़े आप देख रहे हो, कह रहे हो दिस क्लॉथ इज इंफीरियर टू दिस, ये कपड़े की जो क्वालिटी है इससे कम है, बस कम है, खत्म बात। ज्यादा कम है, कम है, डजंट मेक सेंस। गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब हमेशा चलने वाली, हमेशा चले। अब ज्यादा हमेशा चलने वाली है, कम हमेशा चले, हमेशा तो हमेशा होता है, ज्यादा हमेशा कम हमेशा हो नहीं सकता, इसीलिए वी कांट पुट मोर और मोस्ट विद इट। These words do not have a comparative or superlative degree despite the fact that they are adjectives. Rule 9. Some adjectives only have positives and superlative. अब कुछ विशेषण, कुछ adjectives ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। उसमें कंपैरेटिव नहीं होगा, उसमें किसी और से ज्यादा नहीं होगा, या तो सबसे ज्यादा होगा या पॉजिटिव डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल टॉप, ऊपर, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर का। टॉपर नहीं, टॉपर अलग चीज हो गई। टॉपर आप बना सकते हो टॉपर वर्ड, पर टॉपर का मतलब अलग होता है। टॉपर का मतलब जिसने टॉप किया है क्लास में। नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मोस्ट जो नॉर्थ में, तो सबसे नॉर्थ में। सदर्न, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, बीच की डिग्री नहीं होती है, तो पॉजिटिव होती है या सुपरलेटिव होती है। If there are any confusions regarding positive, superlative, please make sure you revisit in the 6th lecture where we started adjectives. There we've cleared what positive, comparative and superlative degrees are. Rule 9, rule 10. Preferable is used only in the comparative degree. Preferable जो word है, ये सिर्फ comparative degree के साथ use किया जाता है। For example, we use to with it and not than. और preferable के साथ क्या use होता है? To. Than नहीं use होता है। We do not use more with it, और उसके साथ more भी यूज नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। प्रेफरेबल अपने आप पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है, उसमें मोर और लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज प्रेफरेबल। अब देखें, आप टू यूज करेंगे, इसमें दैट नहीं। दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। आई प्रेफर टी टू कॉफी फॉर एग्जांपल। आई प्रेफर वाटर टू अल्कोहल फॉर एग्जांपल। यस, प्लेन वाटर, सिंपल वाटर, नो अल्कोहल, डिस्ट्रॉयज योर माइंड। सो प्रेफरेबल के साथ टू लगेगा। इसमें और यूज कैसे होता है कि आई प्रेफर माउंटेन्स, यू कैन से ओवर बीचेस और टू बीचेस। आई प्रेफर माउंटेन्स टू बीचेस। दैट मींस कि आपको ज्यादा पसंद है पहाड़, ज्यादा पसंद है आपको समुद्र तट के अपेक्षा के मुकाबले। We see that in the next examples anywhere. With prefer we can use to and rather than. So rather than भी यूज हो सकता है उसमें, prefer के साथ rather than यूज होगा। prefer का हमने एग्जांपल देखा था, I prefer tea to coffee और I prefer tea rather than coffee. So preferable के साथ to ही लगेगा, than नहीं लगेगा। prefer के साथ to भी लग सकता है या rather than लग सकता है, over भी लग सकता है, we'll talk about that later. Rule 11. If two adjectives used for the same noun or pronoun are joined together by a conjunction, they should be in the same degree. अब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए उपयोग किए जा रहे हैं और उनको एक कंजंक्शन द्वारा जोड़ा जा रहा है, कंजंक्शन जैसे एंड, तो उनको दोनों एडजेक्टिव्स जो है वो सेम डिग्री में होने चाहिए। दोनों एडजेक्टिव या तो पॉजिटिव में हो या कंपैरेटिव में हो, दोनों सुपरलेटिव में हो। फॉर एग्जांपल, गांधी जी वाज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स। नहीं, नोबलेस्ट सुपरलेटिव में, वाइजर भी यहाँ पे सुपरलेटिव में होना चाहिए क्योंकि द बोल रहे हैं। या तो ये बोलते गांधी जी वाज नोबलर एंड वाइजर देन ऑल द लीडर्स, वो भी सही था। या गांधी जी was the noblest and wisest of all the leaders. So two adjectives used for the same noun. What is the noun? गांधी जी के लिए two adjectives, noblest and wisest, दोनों को सेम डिग्री में उपयोग करना है। देखो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में उपयोग किए गए हैं। एक तरीका और हो सकता है इसका कहने का कि गांधी जी was nobler and wiser than all other leaders.
So Gandhi ji was nobler and wiser than all other leaders. Gandhi ji was nobler and wiser than all other leaders. इसमें भी आप देखो nobler, wiser दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज में है. इसका मतलब दोनों एडजेक्टिव्स जो यूज किए गए हैं इस नाउन के लिए वो दोनों एक ही डिग्री में है, सेम डिग्री में है कंपैरेटिव. As noble as wise as any other leader वो भी कर सकते हैं हम, उसमें दोनों पॉजिटिव डिग्री में हो जाएंगे. That is also correct. Rule 12. When we put the before an adjective, it becomes a plural common noun. अब अगर हम किसी adjective के पीछे the लगा दें, तो वो एक plural common noun बन जाता है. For example, अगर मैं कहूँ rich, rich का मतलब क्या होता है? Rich एक adjective है, अमीर, धनी, धनवान. The rich का मतलब हो गया धनवान लोग, तो plural बन गया धनवान लोग. जितने भी धनवान लोग हैं उनकी बात हो रही है. ऐसे ही poor, गरीब, the poor, गरीब लोग, needy, आवश्यकता, आवश्यकतामंद, जिसको आवश्यकता है, जरूरतमंद. For example. और द नीडी, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं. एजेड, बूढ़ा, दी एजेड, सारे बूढ़े लोग. ब्लाइंड, अंधा, द ब्लाइंड, सारे अंधे लोग. डेड, मृत, द डेड, सारे मृत जितने भी हैं. मीक, कमजोर, द मीक, जितने भी सारे कमजोर हैं. विकेड, शैतान, द विकेड, जितने भी शैतान लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल द रिच, विच मीन्स रिच पीपल, सारे अमीर लोग. द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर. अमीर लोग अक्सर शोषण करते हैं गरीब लोगों का. सो एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए, अगर पॉजिटिव डिग्री के पहले द लगा दिया जाए तो वो एक कॉमन नाउन बन जाता है. वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, कौन से होते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन? सेंसेशन वाला जो 5 इंद्रियां हैं उनसे रिलेटेड जो वर्ब्स हैं. फॉर एग्जांपल सीन, ये 6 इंद्रियां भी आप कह सकते हो. 6 इंद्रियां, छठी इंद्रिय आपकी मस्तिष्क, आपका चित्त, आपका मन, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको हम लोग एक छठी इंद्रिय भी मान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीन मतलब प्रतीत होता है. लुक, देखना, अपीयर, वही प्रतीत होता है. फील, स्पर्श, फील, टेस्ट, स्वाद लेना, साउंड, ध्वनि, स्मेल, उसकी जो गंध है. आर फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स इंस्टेड ऑफ एडवर्ब्स. अब वैसे तो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स, पर इन वर्ब्स को जो सेंसेशन के वर्ब्स हैं उनको एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब्स नहीं. फॉर एग्जाम्पल ही फील्स बैड होगा, बैडली नहीं होगा. बैडली इज एन एडवर्ब. He did his work badly, maybe yes, because that is another verb. It is not a verb of sensation, but here he feels. I feel, that is a verb of sensation. That is a sensation that I'm having. That is why we are using an adjective to modify it and not an adverb. The soup smells delicious, not deliciously. Delicious. He cooks deliciously. Maybe cooks is a verb that can be modified by an adverb deliciously. तो difference आप देखोगे, adverb बनाने के लिए ly add हो जाता है adjectives में ज्यादातर. There are exceptions, obviously. We'll do them when we cover adverbs. Verbs like verbs जैसे be, become, turn, get, grow, keep, make and prove are also modified by adjectives. अभी sensation के verbs थे वो तो थे ही, उनके अलावा कुछ और, उनके अतिरिक्त कुछ और exemptions भी हैं, exceptions भी हैं. Exemption और exception, exemption means किसी चीज को ना यूज करना है, किसी चीज को हटाना उस जगह में से, ओमिट करना किसी चीज को, बहिष्कार करना किसी चीज का, एग्जेम्प्ट करना उस चीज को ना उपयोग करना, बाहर हटाना. तो एक्सेप्शन से कुछ अपवाद है. बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव, इनके साथ भी एडजेक्टिव यूज होता है, एडवर्ब नहीं. फॉर एग्जांपल व्हेन he heard the news he became sad, not sadly. क्यों होता है आप ये समझेंगे. When we do verbs advanced and we do verbs in a deeper way, with much more depth than we are doing right now, you will understand that verbs are of two kinds, transitives and intransitives, and intransitive verbs can be verbs of incomplete predication as well, and then to complete them they take up an adjective. That is where such verbs come in, where they are modified by adjectives and not by adverbs. अभी आप बस ध्यान रखें, ये जो verbs हैं और ये जो verbs हैं वो adjectives से modify होते हैं, adverbs से modify नहीं होते. Hyphenated nouns क्या होते हैं? Nouns जिनके बीच में hyphen लगा होता है. ये hyphen दिख रहा है आपको dash, ये जो dash लगा हुआ है ये hyphenated nouns है. ये है एक ही word, दो words को जोड़ के एक word बनाया हुआ है, बीच में hyphen लगा हुआ है. That is why they are called hyphenated nouns. They are treated as one word. Hyphenated nouns used as compound adjectives are never used in plural. और hyphenated nouns को जब हम adjective की तरह उपयोग करते हैं तो उनको कभी plural के रूप में यूज नहीं करते, हमेशा singular के फॉर्म में यूज करते हैं. For example, I delivered a 2 hours lecture. No, I delivered a 2 hour lecture. I delivered a lecture for 2 hours.
there ours becomes a noun and to becomes an adjective for it. Hyphen is removed, to and ours becomes two different words. They become two different words. Here 2 hours is just one word with a hyphen, never used. Now this is acting as an adjective because it is modifying the noun lecture. और यहाँ पे s नहीं लगेगा, singular form उसका लगेगा. Hyphenated nouns used as a compound adjectives are never used in the plural. They are always used only in the singular. Give me a 200 rupee note, not 100 rupees. 100 rupee note. Give me 200 rupee notes. तो 100 रुपए के दो नोट मेरे को दे दो. या तो यहाँ पे भी कह सकते थे give me a 200 rupee note. इसका मतलब 200 रुपए का नोट मेरे को. 2 और 100 के बीच में भी हाइफेनेटेड हो जाता है. 200 rupee note. Give me 200 rupee notes, not 100 rupees, but 100 rupee. So whenever we are using, again in this as well, you'll see this is the noun. This is modifying notes. कैसे notes? 100 rupee के notes. So it is modifying the noun notes, hence is acting as an adjective. And whenever hyphenated nouns act as an adjective, they are used in the singular and not in the plural. Rule 15. Now when noun used as an adjective, it is never used in the plural. अब अगर noun को हम adjective की तरह उपयोग कर रहे हैं, किसी noun को अगर कभी हम adjective की तरह उपयोग कर रहे हैं, उसको plural में उपयोग नहीं करेंगे, हमेशा singular में उपयोग करेंगे. For example, I'll say lasers are indispensable tools for delicate eyes surgery, नहीं eye surgery. For example, if you say I went for a foot massage, not a feet massage. Plural क्या होता है? Foot का feet, feet नहीं, foot massage के लिए जाते हैं, feet massage के लिए जाते हैं. Foot is singular. तो यहाँ पे किस तरह का मसाज? फुट मसाज. दैट इज व्हाई फुट वैसे तो नाउन है, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, हियर मॉडिफाइंग द नाउन मसाज. यहाँ पे भी सर्जरी नाउन है, आई इज मॉडिफाइंग द नाउन सर्जरी. दो आई इज अ नाउन, हियर इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, मॉडिफाइंग द नाउन सर्जरी. व्हेनेवर अ नाउन एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, इट इज नेवर यूज्ड इन द प्लूरल बट ओनली इन द सिंगुलर. रूल 16. पोजेसिव आफ्टर ऑल और बोथ. अब पोजेसिव जो एडजेक्टिव है, कौन कौन से पोजेसिव एडजेक्टिव्स थे? माय, our, your, his, her, their, or its as well. So possessive after all or both. अब all और both अगर word आ रहा है सेंटेंस में, all और both से अगर शुरू हो रहा है, तो possessive उसके बाद लगेगा. My all friends have been selected नहीं, all my friends. all पहले आएगा, फिर my आएगा. Both my friends, my both friends नहीं. बोलने में people usually say something like that. Both my friends were selected. No. My both friends were selected. No, that is not the correct way of saying. You will say both of my friends or both my friends were selected. Both my friends are coming. Both of my friends are coming. All of my friends are coming. All my friends are coming. Not my all friends or my both friends. That is incorrect. So make sure you understand that. Whenever there is a possessive adjective, all or both के साथ, all or both के बाद आएगा possessive adjective. Then if in the same sentence we use both the positive and comparative degree of an adjective, then we use both as and than. अब अगर हम एक ही सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, किसी एडजेक्टिव का पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों ही यूज कर रहे हैं किसी एक सेंटेंस में, तो हम दोनों यूज करेंगे. पॉजिटिव के लिए as और कंपैरेटिव के लिए than. फॉर एग्जांपल, he is as intelligent as. अभी देखो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के पीछे और आगे as लगता है. हम लोग कर चुके हैं पहले दो बार. Make sure you're revisiting the lecture if you are not aware of this or if you're confused about this. Starting from the 6th lecture, adjectives का first lecture जो है, he is as intelligent as, if not more than. अब more यहाँ पे क्या comparative degree हो गया, more intelligent. यहाँ लिखा नहीं है मैंने more intelligent, लिखने की जरूरत भी नहीं है, गलत भी होगा लिखेंगे तो, क्योंकि पहले intelligent हम बोल चुके हैं. तो ये comparative degree बन गया यहाँ पे. क्या कह रहा है? He is as intelligent as, if not more than his brother. कि वो अपने भाई से भले ज्यादा समझदार ना हो, पर उतना समझदार तो है ही. He is as intelligent as, उतना समझदार तो है जितना उसका भाई है, भले उससे ज्यादा ना हो. If not more than his brother. So दोनों यूज हो रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री, और दोनों ही as और than दोनों यूज. Rule 18, with the word times we use only the positive degree. अगर times जो है शब्द उपयोग हो रहा है तो उसके साथ positive degree ही यूज होता है. For example, my house is 4 times. Times क्या होता है? गुना. गुणा, जो कि 10 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1 गुना, etc. etc. So my house is 4 times. 4 गुना, bigger नहीं, as big as. Positive degree यूज होता है times के साथ, ये याद रखिए. Bigger नहीं, बड़ा है. My house is bigger than yours. Yes, but my house is 4 times as big as yours. कि आपके घर के 4 गुना कर दिया,
अब उतना बड़ा है। तो पॉजिटिव आपको याद होगा, वी कंपेयर व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स ऑफ द इक्वल क्वालिटी ऑफ सिमिलर क्वालिटी देन वी यूज द पॉजिटिव डिग्री। हमने सिमिलर क्वालिटी का बना दिया आपके घर को, क्यों? क्योंकि हमने घर को 4 गुना बता दिया, घर को 4 गुना बता दिया, तो अब वो मेरे घर के बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। माय हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स। ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स, आप ऑर्डर देख लें एडजेक्टिव्स का। अगर एडजेक्टिव्स, बहुत सारे एडजेक्टिव्स किसी एक ही चीज के लिए लगे हुए हैं, किसी एक ही चीज के पीछे बहुत सारे एडजेक्टिव्स बताए हुए हैं, तो एडजेक्टिव्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है। उसमें साइज अगर बताया तो सबसे पहले साइज लिखेंगे, शेप बताया तो फिर शेप आएगा, फिर एज, फिर कलर, फिर इमोशन, फिर नेशनैलिटी, फिर मटेरियल। फॉर एग्जांपल देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड अ 22-year-old। पहले क्या आ गया यहाँ पे? एज। ब्लैक अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन मींस नेशनैलिटी। सो ब्लैक कलर भी आप कह सकते हो, पर कलर अगर कहेंगे यहाँ पे तो हमको रेसिस्ट बताना शुरू कर देंगे। अफ्रीकन अमेरिकन होना चाहिए, ब्लैक अमेरिकन नीग्रो, एंड नीग्रो इज द noun that it is modifying. We're not racist here, we are just identifying, because we must identify on physical features, right? If somebody is to be arrested, we can't say that, oh no, I don't know whether he was black or white, I did not notice. That's not possible. You cannot be so liberal and so politically correct that functioning in society becomes difficult. So size पहले आएगा, फिर shape, फिर age, फिर color, फिर emotion, फिर nationality, फिर material। एक और example देख लेते हैं। The thief flashed a big sharp knife. Big size है, size पहले आया, फिर आया sharp, जो आपको उसका shape बता रहा है। And asked the cashier to fill the black leather bag with money. Black पहले आएगा, क्यों? क्योंकि color पहले आता है material से। Material क्या है? Leather। तो leather black bag नहीं होगा, black leather bag होगा। तो ये आप ऑर्डर याद रखें, इसी ऑर्डर में एडजेक्टिव्स उपयोग किए जाएंगे। जितने भी एडजेक्टिव्स दिए हो इसी ऑर्डर में, सारे एडजेक्टिव्स अगर दिए उसके साइज भी दिया, शेप भी दिया, एज भी दिया, कलर भी दिया, इमोशन भी दिया, नेशनैलिटी भी दिया, मटेरियल दिया, इसी ऑर्डर में आएगा। कुछ दिए उनमें से तो अपने ऑर्डर के अनुसार आएंगे, जितने दिए हैं वो अपने ऑर्डर के अनुसार आएंगे। Rule 20, we cannot use two comparatives and two superlatives together. अब comparative और superlative दोनों साथ में उपयोग नहीं कर सकते हैं आप। You cannot say most cleverest, या तो most clever कहोगे या cleverest कहोगे। Most clever आप कह सकते हो, but cleverest is the correct. So cleverest of all the officers, most clever. More better नहीं, more भी comparative है, better भी comparative है, more good भी गलत है, क्योंकि good का comparative होता है better. He is better than that. इससे तो बेहतर है यार वो। यहाँ पे भी most cleverest, most clever और cleverest. Now, when two adjectives that require different prepositions are used together, make sure to use the appropriate prepositions with each. अब दो अलग-अलग adjectives अगर यूज किए जा रहे हैं साथ में किसी एक ही व्यक्ति के लिए, और दोनों के बाद prepositions अलग-अलग लगने हैं, एक के बाद to लगना है, एक के बाद than लगना है। हमने अभी देखा था IOR वाले जो खत्म होते हैं adjectives, उनके बाद to लगता है, than नहीं लगता है। And prefer के साथ भी to लगता है, rather than लगेगा या तो या to लगेगा, preferable भी to लगेगा। So here we'll see if there are two adjectives and both of them take different prepositions, then we must use the different prepositions along with them consequently at that space, at that place itself. For example, he is senior to and more experienced than you. तो senior के साथ to लगता है, more experienced के साथ than लगता है, दोनों को अपनी अपनी जगह पे लगा देंगे। अगर दोनों एक ही जैसे prepositions होंगे तो साथ में कर सकते हैं। For example, he is older, senior की जगह older होता तो older में भी than लगता है, more experienced में भी than लगता है, तो older के साथ than लगाने की आवश्यकता नहीं थी, than एक ही साथ लग जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स के इक्वेशंस में हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, x बाहर निकाल देते हैं, कुछ वैसा सही। So he is older and more experienced than you, और अगर senior लगा है तो senior के लिए to यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे to यूज करेंगे, क्योंकि वहां than यूज हो रहा है। He is senior to and more experienced than you. Alright, we've already done these questions in the previous class. Please make sure you are revisiting them, or pause your video right now and figure out the answers for these and check the answer in the previous lecture. Let's move on to the last part of our lesson today. The last 20 questions of the question paper that we were doing 2022, first question paper of 2022, the year 2022, the first question paper of NDA. We did the 30 questions in the previous exercise, previous lecture. Now we're doing the rest. So antonyms बताने में यहाँ पे antonyms का मतलब होता है opposite. Make sure हमेशा याद रखना भाई कि antonyms synonym आप देख रहे हो कि antonyms बताने की synonyms बता रहे हैं, उस हिसाब से आप काम कर रहे हो। बहुत बार मैंने इसलिए देखा है कि बच्चों ने antonyms में synonyms याद करके synonyms बता रहे हैं उसके। Crude का मतलब क्या? Synonyms होगा। तो crude person मतलब बहुत जैसे crude oil होता है, impure होता है, जो दूषित होता है, उसको crude कहते हैं। उसको फिर refine करते हैं, हम purify करते हैं, उसमें से refined oil निकलता है।
जो रिफाइंड पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम होता है उसमें रिफाइन करके हम लोग पेट्रोल और वो सब चीजें निकालते हैं, और बाकी जो पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं उनकी प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, प्लास्टिक और वो सब चीजें बनती हैं फॉर एग्जांपल. So we'll see here we have an exact antonym. Here we have an exact antonym to crude, refined. His confidence is high. Confidence का exact opposite यहाँ पे दिया हुआ है diffidence. Confidence सबको पता है क्या होता है, उसका opposite diffidence. Next, see 33rd. His integrity is noticed. इंटेग्रिटी होती है मर्यादा, आपका सत्यवाद, अगर सत्यवचन आप सत्यवादी हैं, अहिंसक हैं, जो भी आपकी चीज है, इसको इंटेग्रिटी कहते हैं. किसी भी जगह की मर्यादा को उस जगह की इंटेग्रिटी बोलते हैं. क्या मंदिर में जाएंगे तो अलग तरीके से काम करेंगे, पब में क्लब में जाएंगे तो अलग होगा, स्पोर्ट्स क्लब में जाएंगे तो अलग चीज होगी, मूवी थिएटर में जाएंगे तो अलग होगा, अपने घर पे होंगे अलग होगा, किसी दोस्त के घर पे होंगे अलग होगा, इत्यादि 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 इत्यादि. तो इंटेग्रिटी किसी जगह की आपकी मर्यादा होती है. हिज इंटेग्रिटी, यहाँ पे किसी व्यक्ति की इंटेग्रिटी के बारे में बात की जा रही है, तो इसका मतलब वो भरोसेमंद व्यक्ति है, उसके जो भरोसेमंद होने का जो क्वालिटी है वो नोटिस की जाती है. तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे डिसऑनेस्टी हो जाएगा. डिसऑनेस्टी मतलब उसका झूठ बोलने का जो प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं. शी इज अ बेनेवोलेंट इंडिविजुअल. बेनेवोलेंट मतलब दयालु, अच्छा, दिल का अच्छा. इसका एब्सोल्यूट ऑपोजिट होता है मलेवोलेंट. मलेवोलेंट मतलब दुष्ट, दिल से खराब. Then we have his sartorial manner is judged. Sartorial means stylish, and here the opposite is unstylish. So exact opposite of sartorial, unstylish. 36. The piece of art is authentic. Authentic मतलब genuine, सच है, मतलब असली है. तो असली का opposite क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, लिखी जाएगा आपको D, fake. The deluge affected the population. Deluge होता है बहुत ज्यादा पानी बरसना, बहुत ज्यादा पानी. जब बहुत ज्यादा पानी आया था उसको डिल्यूज कहते हैं. जब बादल फट रहा है, बादल फट के जो पानी गिरा, दैट इज कॉल्ड अ डिल्यूज. सो द ऑपोजिट ऑफ इट यू विल सी ड्रॉट. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना. अगर सूखा पड़ रहा है कहीं पे तो उसको ड्रॉट कहते हैं. डिल्यूज का ऑपोजिट हो गया ड्रॉट. हिज डेडिकेशन, अच्छा ड्राफ्ट भी होती है एक चीज, उसकी स्पेलिंग अलग होती है. ये ड्रॉट है, दिस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ड्रॉट. It is D-R-A-U-G-H-T, draft. Check the meaning by yourself, fill in your lexicon, but that is another word, draft. His dedication is known to all. Dedication मतलब आपकी समर्पण, आपका समर्पित हो पाने का जो आपका एटीट्यूड है उसको डेडिकेशन कहते हैं. तो अगर आप समर्पित नहीं है मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आप हैं एपैथेटिक. एपैथेटिक मतलब एपैथी. एपैथी का एक और चीज होता है इंडिफरेंस. इंडिफरेंस भी एक वर्ड होता है एपैथी के लिए. इसका मतलब इंडिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि उसमें समानता है, क्योंकि उसमें भिन्नता नहीं है, भिन्नता ना होना. डिफरेंस अलग चीज हो गया. डिफरेंस अलग हो गया कि आपके उसके उन दोनों के बीच में भिन्नता है, दोनों अलग अलग है तो डिफरेंट है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट. बट इनडिफरेंस का मतलब होता है, ये नहीं मतलब होता इंडिफरेंस का कि भिन्नता नहीं होना. इनडिफरेंस का मतलब होता है आपको फर्क नहीं पड़ता. इफ यू आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स समथिंग, इसका मतलब उस बात का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज व्हाट इनडिफरेंस मींस. नाउ वी हैव हिज पर्स्पिकैसिटी. पर्स्पिकैसिटी मतलब होता है आपका निर्णय ले पाने की क्षमता. अगेन जैसे विजडम हमने बोला था कि क्विकनेस जो विट होती है आपकी, कि कितने चालाक चतुर और कितनी जल्दी आप निर्णय ले पा रहे हैं अच्छे. ऑपोजिट हो जाएगा इसका डलनेस. डलनेस मतलब वही मंद बुद्धि फॉर एग्जांपल. सो मंद बुद्धि उसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज डलनेस, मंद. ही हैज अ पेंchant फॉर, और पेंchant इज आई थिंक ही हैज अ पेंchant फॉर स्पाइसी फूड, मतलब लाइकिंग. किसी चीज के प्रति अगर आपका आसक्ति है, अगर आपकी किसी चीज, कोई चीज अगर आपको पसंद है, दैट इज व्हाट दैट इज. सो इसका ऑपोजिट हो जाएगा 40 का डी, डिसलाइक. द एग्जैक्ट ऑपोजिट. ऑलराइट, लास्ट 10 क्वेश्चंस टुडे. नाउ वी आर डूइंग सिनोनिम्स. याद रखिए आप सिनोनिम्स है. अब आपको मीनिंग बताना है उसका. बेसिकली सेम वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स दैट मीन द सेम. आफ्टर गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट करता है कोई, आपको बड़े सुंदर लग रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट. तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रेज. प्रेज उसका सिनोनिम है. एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट. नाउ हिज वर्क इज लॉडेबल. लॉडेबल मतलब बहुत प्रशंसाजनक, प्रशंसा योग्य, काबिले तारीफ, प्रेजवर्दी. राज इज अ कॉम्पिटेंट कारपेंटर. कॉम्पिटेंट मतलब उसके अंदर सक्षमता है, सक्षम है. कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटिशन कर सकता है, सक्षम है, सक्षमता है उसके अंदर, केपेबल. ही इज डिलिजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स.
डिलिजेंट मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देता है, ध्यान रखता है इस चीज का कि असाइनमेंट सबमिट करे। कॉन्शियंशियस, कॉन्शियंशियस भी वही कॉन्शियंस से आता है आपकी अंतरात्मा। कॉन्शियंशियस आप अगर हैं, इसका मतलब कि आप बहुत सावधानी से काम करते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, सही से काम करते हैं। डिली डैलिंग और प्रोक्रेस्टिनेटिंग, देर करना होता है कि देर में कर रहे हैं आप। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है। कॉन्शियंशियस हो गया डिलिजेंट, या बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ। डेडिकेशन के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो डिलीजेंटली आप काम कर रहे हैं। डेडिकेशन इज अनदर वर्ड फॉर दैट। विद डेडिकेशन, यस, डिलिजेंट, he is dedicated और he is conscientious. He appears to be reticent. Reticent मतलब कम बोलने वाला, अपने आप में रहने वाला, ज्यादा घुलने मिलने वाला नहीं। withdrawn, तो withdrawn मतलब अपने आप में रहने वाला। withdraw, वैसे withdraw क्या होता है? पीछे हटा लेना किसी चीज को। तो withdrawn, अगर कोई व्यक्ति withdrawn है, इसका मतलब वो आगे नहीं बढ़ता है, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, अपने आप में रहता है, शांत शांत सा रहता है। So reticent will be withdrawn. All right. Now we have, he is always jovial. Jovial का मतलब होता है खुश। jovial जो हमेशा खुश रहता है, हंसता खिलता रहता है। cheerful is the exact synonym of it here. cheerful. And we'll see Mohan remains morose. Morose मतलब दुखी, बड़ा दुखी सा, बुझा बुझा सा। The exact meaning here is sullen. sullen. इंट्रोस्पेक्टिव मतलब अंदर अपने अंदर घुसना और अपने अंदर झांकना और जांच पड़ताल करना अपने बारे में, बट उसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि आप दुखी हो। दुखी, sullen, that is what it is. Alright, then we have reluctant. Reluctant मतलब कोई काम ना करना चाहना। He was a reluctant learner. ना करना चाहना, उसको सीखने में मजा नहीं आता था, सीखना उसको अच्छा नहीं लगता था। Reluctant is unwilling. And Amit is optimistic. Optimistic मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, उसको हम लोग ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक का यहाँ एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा सैंग्विन। अगेन, पर्सन हु इज एनर्जेटिक एंड थिंक्स पॉजिटिवली अबाउट समथिंग, दैट इज व्हाट इट मींस हियर। ऑलराइट, एंड फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। इसका हो जाएगा यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग कंप्लेजेंट। अच्छा, कंप्लेजेंट और कंप्लेसेंट है। कंप्लेसेंट का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट, कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप बैठ गए हो, पस्त हो गए हो, काम नहीं कर रहे हो, आराम से बैठ गए हो कि हमारा तो हो गया, हमने तो कर लिया, हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज कंप्लेसेंट। बट कंप्लेजेंट मींस कोऑपरेटिव, कि जो मान रहा है बात और साथ साथ में चल रहा है, जो कोऑपरेट कर रहा है। So Sachin is very cooperative in nature. All right. So that's that. With this, adjectives has been done. Make sure you're revising all the lectures that have been done before, and that you are able to solve all the questions that are regarding those topics. And I will see you in the next one.